Good morning, everyone. Today we are going to start with the next chapter, which is correlation. It is a part of Maths 2. In the correlation, we are having few topics which are named as covariance or the variance or the correlation coefficient. Let's just go through the theory of the correlation first. We have seen what is variance and standard deviation in the second chapter, right? Now we are going to see the advanced part of it. Correlation, its name itself tells us everything. Correlation, that means relation between any two variables, right? So here we are going to find the relation between the two variables x and y, which is given to us in the examples. First, this chapter is all about the formulas only. So we are going to see the formulas which are there in this particular exercise. First formula we are having, as you can see over there, is, just a minute, the formula which we are going to see over here is COV of xy. This COV stands for covariance. This COV is covariance of x and y. And the formula is 1 upon n. This symbol stands for summation I from 1 to n. That means the values of I may vary from 1 to n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever may the values. The next is xi minus x bar. What does xi minus x bar stands for? xi are the particular values of x की जो वैल्यूज दिए जाएंगे वो, एंड x बार इज द मीन वैल्यू विच वी हैव सीन द प्रीवियस चैप्टर. नेक्स्ट इज y i minus y by. y i is the value of y, variable y, and y bar are the average value of y bar. Obviously when we are going through the theory, it is quite difficult to grasp what is given out there. So just focus on the formulas, learn the formulas. In the example, directly values are given to you. You just have to put the values over there. So don't worry about what is xi, what is x bar, how to find them. But for your convenience, I have given the formula of average, which is x bar and y bar in the next page, next line, where x bar, the formula for x bar is summation xi upon n, and formula for y bar is summation yi upon n. This symbol, this stands for summation. Summation means एडिशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी देखा है. अगर आप एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो यू एड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय एन. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज एन. एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. समझो मेरे पास 1, 7, 6, 9 ये 4 वैल्यूज है. ये x के 4 वैल्यूज है. आई हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ इट. व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द वैल्यूज, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द x and divided by number of observations. That means 1, 2, 3, 4 observations are there. I will divide it by 4. जो एवरेज आप निकालते थे 10 तक मीन मीडियन के लिए मीन निकालते थे ना, the same topic is here. The same x bar and y bar is here. Fine. There is one more formula for covariance of xy. The term is same, only the formula is different. First formula we have seen is 1 upon n, summation of I equals to 1 to n, xi minus x bar and yi minus y bar. This is the first formula. The second formula for covariance of xy is 1 upon n, summation of I from 1 to n, xi yi minus x bar y bar. ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट वन अनदर फॉर्मूला फॉर यू. जस्ट फॉर्मूला याद रखो. आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं अलॉन्ग विद दिस, and please go through the notes for this particular video. You will be understanding the topics and don't worry, इस चैप्टर पे बहुत बेसिक एग्जांपल्स आते हैं. जितने एग्जांपल मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ एक्सरसाइज में से उतने भी टाइप्स के एग्जांपल किए आप लोगों ने, फिर भी एग्जाम में यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नेक्स्ट इज द वेरिएंस. दिस पार्ट वी हैव सीन इन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हमने बहुत अलग अलग फॉर्मूले देखे थे. वही सेम फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होने वाले. इसके लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है वेरिएंस का. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, दिस इज वेरिएंस. द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस इज 1 अपॉन n, समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 to n, xi माइनस x बार द होल स्क्वायर. और देयर इज वन मोर फॉर्मूला, 1 अपॉन n, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n, xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर. यू कैन यूज आइदर ऑफ द फॉर्मूला, एनी वन ऑफ देम. ठीक है, दोनों के दोनों एट अ टाइम यूज मत करो. कोई भी एग्जांपल में इनमें से एक फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकते हो. अब इसको इस चैप्टर में जो जरूरी है आप लोगों के लिए, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एंड फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, सिंबल इज आर एक्स वाई. कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंबल है आर एक्स वाई एंड द फॉर्मूला इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जिसके हमने फॉर्मूला ऊपर देखे, डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. अब आप बोलोगे सर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या होता है? अब ऑब्वियसली ये टॉपिक हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में देखा है. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई किसका सिंबल है? इफ़ यू कैन रिकॉल प्रॉपरली, इट इज़ अ सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा एक्स इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स
एंड सिग्मा वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जनरलाइज फॉर्मूला हमें पता है, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स, इट इज अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स। वेरियंस एक्स का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे है, तो इसको सिर्फ मैं क्या करूँगा, अंडर रूट में लिख लूँगा। देखो अब तो वेरियंस के ये दोनों जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स के टाइम पे सिर्फ उनको मैंने अंडर रूट पे लिख लिया, ठीक है। अगर मुझे सिग्मा वाई का आंसर चाहिए, सिग्मा वाई का फॉर्मूला चाहिए, जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे वाई लिखूंगा। जैसे यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार था, मैंने यहाँ पे वाई आई माइनस वाई बार लिख लिया। यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर था, यहाँ पे वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर मैंने लिख लिया, बराबर है। सो जो हमें वेरिएंस का फॉर्मूला मिला था उसको सिर्फ स्क्वायर रूट में मैंने क्या कर दिया है, पुट कर दिया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो होपफुली आप लोगों को ये सारे फॉर्मूलाज ठीक से समझ में आ गए होंगे। नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वेरी बेसिक एग्जांपल्स आर देयर एंड वी आर गोइंग टू सी दोज एग्जांपल्स। There is one more topic for you named as scatter diagram. It is quite basic thing. You people have already seen how to plot the coordinates of the point on the x and y axis. So I'll just explain you. प्लॉटिंग तो आप लोगों को पता है कि आपको अगर कोई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो एक्स एंड वाई पे प्लॉट कैसे करना है। अब वो प्लॉट करने के बाद आपको जो ग्राफ प्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्कैटर डायग्राम। स्कैटर का मतलब होता है फैलना, दैट मीन्स वो पॉइंट जो वो कितना स्प्रेड हो रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। अब पहला वाला जो डायग्राम आपको टाइप्स बता रहा हूँ, पहला जो डायग्राम है एज यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स वी हैव प्लॉटेड आर गोइंग थ्रू सिंगल लाइन, दैट मीन्स दिस इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये जो मैंने स्कैटर डायग्राम निकाला यहाँ पे कोई भी स्कैटर नहीं हो रहा है, स्कैटर मतलब दूर नहीं जा रहा है, मतलब उनके बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। विल सी फ्यू मोर टाइप्स, देयर इज वन मोर ओवर हियर एज यू कैन सी ओवर हियर। अब पॉजिटिव और निगेटिव कब कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब इंक्लिनेशन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, इट इज गोइंग अप, इसके लिए इट इज पॉजिटिव। एंड हियर स्कैटरिंग इज देयर, दैट मीन जो सेंट्रल लाइन है उसके आजू बाजू में क्लोज पास में हमारे पॉइंट से, इसके लिए उसको हाई डिग्री कहा जाता है, ठीक है। अगले इसमें भी देखो इट इज गोइंग अपवर्ड, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। एंड द पॉइंट्स, ये पॉइंट जो वो लाइन जो है उसके थोड़े दूर चले गए, इसके लिए वहाँ पे को रिलेशन की डिग्री लो हो गई, मतलब वो ज़्यादा पास में नहीं है। उसके बाद निगेटिव के बारे में बोला, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाने वाला, अब निगेटिव देखो यहाँ से नीचे आ रहा है तो इसके लिए दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव। एंड ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, मतलब ये परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन है। जैसे पीछे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन मिला था हमें, ये देखो ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन था, वैसे ही ये वाला परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लाइन नीचे जा रही है बट ये पॉइंट्स क्लोज है उसके, मतलब हाई डिग्री, सो दिस इज निगेटिव कोरिलेशन विद द हाई डिग्री। नेक्स्ट इज लाइन नीचे ही जा रही है, मतलब निगेटिव कोरिलेशन है ये वाला, देखो दिस इज द निगेटिव रिलेशन, बट पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही स्प्रेड हो गए, स्कैटर हो गए, इसके लिए यहाँ पे लो डिग्री होने वाला है। गॉट इट एवरीवन, ये टाइप आपको काम में आएंगे प्लॉटिंग के टाइम पे। एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने वाले हैं हम। Now we'll start with the exercise directly. In this exercise we are going to solve 3 questions. One is based on the scatter diagram and the rest 2 are based on the covariance and the correlation coefficient of any 2 variables. First we will see what is correlation, as the graph wasn't available with me. I have drawn this graph on the notebook, but you people are supposed to draw it in the graph paper, okay. In the question if you observe properly, they have given you one table and they have said draw the scatter diagram and interpret it. अब ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम मतलब प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स इज देयर, बट लास्ट सेकंड पार्ट इज इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट इट का मतलब क्या है, जो हमने अभी टाइप्स देखे ना, पॉजिटिव है या निगेटिव है, देन हाई डिग्री है लो डिग्री है, क्या है वो हमें बताना है सिर्फ उसमें, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्लॉटिंग कैसे करना है। एक्स एंड वाई वैल्यू आर गिवन टू यू इन एग्जांपल। एक्स की वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड फॉर वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, द वैल्यू ऑफ वाई इज 32। 20 के लिए 20 है, 30x जब होता है तो वाई की वैल्यू 24 है, जब एक्स की वैल्यू 40 तब वाई की वैल्यू 36, एक्स की वैल्यू 50 तो वाई की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू 60 तब वाई की वैल्यू 28 एंड 70 के लिए 38। दीज आर द डिफरेंट पेयर्स ऑफ। सो हम क्या करने वाले हैं, एक्स वाई के पेयर्स लेंगे और वो प्लॉट करेंगे। अब देखो मैं पहले के लिए देखो यहाँ पे ये पहला है मेरे पास, x की वैल्यू जब 10 है तो y की वैल्यू 32 है, मतलब मेरा पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या आएगा 10, 32, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 32। दूसरा पॉइंट क्या है 20, 20, मतलब x की वैल्यू 20, y की भी वैल्यू 20, सो सेकंड पॉइंट वुड बी 20, 20। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 24 है, सो 30 एंड 24।
देन फोर्थ पॉइंट x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 36, 40 36 एंड लाइकवाइज। अब मैं और पॉइंट्स नहीं लिख के दूंगा, सिर्फ आपको बता दिया कैसे पॉइंट्स प्लॉट करने। अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे उस टाइम पे एक चीज़ हमेशा याद रखो, x का पॉइंट प्लॉट करने के टाइम पे, एक्सिस पॉइंट प्लॉट करने के टाइम पे आप देखो कहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10 का डिफरेंस है, तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिख सकते हो। वहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मैंने आपको जानबूझ के स्केल लिख के नहीं दिया, दैट यू पीपल आर सपोज टू राइट, बट 10, 20, 30, 40, 50, 60, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे स्केल होगा, यहाँ पे एक्स, ये एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाई, सो एक्स एक्सिस पे जो स्केल होने वाला दैट इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। नाउ विल सी फॉर वाई। अगर वाई की वैल्यूज ऑब्जर्व करोगे ना, 32, 20, 24, 36, 40, 28, 38, ऑलमोस्ट ऑल द वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 4। सारे के सारे वैल्यूज 4 से डिविजिबल है, सिर्फ 38 ऐसी वैल्यू जो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 लेने पड़ेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 यूनिट। देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड लाइकवाइज। लेट्स जस्ट ट्राई टू प्लॉट द पॉइंट्स नाउ। एक्सिस पे कैसे पॉइंट लिए वो तो समझ में आ गया, पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो 10 एंड 32, 10 एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, 32 वाई एक्सिस पे। ये 10 से ऊपर लाइन जा रही है और वो कहाँ पे टच करेगी, वाई एक्सिस के 32 पे। देखो ये 32 और ये 10, ये वाला बराबर है, तो ये पहला पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। सेकंड पॉइंट एज यू कैन सी इज 20, 20, दैट मींस एक्स पे भी 20, वाई पे भी 20। एक्स का 20 पॉइंट यहाँ पे जा रहा है और वाई का 20 का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्या है, 30 एंड 24। सो 30 ऑन द एक्स एक्सिस वो यहाँ पे जाएगा एंड 24 ऑन द वाई एक्सिस वो यहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली आई एम ड्रॉइंग इट ऑन नोटबुक, सो इट वोंट बी प्रिसाइज as much as graph paper. If you try to draw it on the graph paper, you would be getting the exact points which are there. Next point is 40, 36. On the x-axis you are having 40 and on the y-axis you are having 36. तो 40 से straight जाने वाला line and 36 का horizontal line we are going to plot. This is the point and likewise we are going to plot next point. ये है 50, 40. ये है 60, 28 and this is 70, 38. तो from the center of this point I am going to draw a random line which is over there. This is the line and as you can see the line is going upward. ये line upward जा रही है, तो which type of correlation is it? उन्होंने वहां पे बोला है ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इंटरप्रेट करो उस डेटा को या उस कोरिलेशन को। अपवर्ड जाने वाला कोरिलेशन कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो अपवर्ड, दैट मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट ओवर देयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? बिकॉज स्कैटर डायग्राम पे इतने ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते, आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, उनको प्लॉट करो एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रेट वेदर गिवन कोरिलेशन इज पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन, दैट इज इट। एनी प्रॉब्लम एनीवन? प्लीज गो थ्रू इट वंस। Okay, now next two questions which we are going to solve from this exercise are question number 4 and question number 8, which are based on the concept of covariance and the correlation coefficient. If you see question number 4, they have given you few data. One is n is 15, that is number of observation is given as 15. X bar, that is mean of x, is given as 25. Y bar, that is mean of y, is given as 18. नेक्स्ट इज सिग्मा एक्स विच इज गिवन एज 3.01. सिग्मा मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स इज गिवन एज 3.01. सिग्मा वाई इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई विच इज गिवन ओवर देयर, राइट. इसके बाद सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई, इट इज गिवन एज अ 3.03. Next is this symbol is for summation. Summation of this total, that is xi minus x bar into yi minus y bar is given as 122, and they have asked you to find the correlation coefficient, that means r. अगर आप r का फॉर्मूला याद कर पाओगे तो वो फॉर्मूला हमारे पास है कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y. सो सिग्मा x और सिग्मा y तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए हुए आपको, सिर्फ कोवेरियंस ऑफ xy फाइंड करना है दिए हुए डेटा के ऊपर से. कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार. इसमें ये जो दिख रहा है मुझे, इसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ स्मॉल बॉक्स. इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली एग्जांपल में दी गई है, क्वेश्चन में ही दी है 122. 1/n इंटू दिस, इसकी वैल्यू 122 1/n, n की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है विच इज 15. सो 1/15 इंटू 122. 1/15 इंटू 122 इज 122/15. इसको एज इट इज रखता हूँ मैं,
ये वैल्यू एज इट इज रखता हूँ बिकॉज आगे काम में आने वाली को। तो कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू कितने आ गई 122। अब मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करता हूँ विच इज आर इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू 122 लिख लिया मैंने। देन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3.01 एंड सिग्मा वाई की 3.03। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 122 अपॉन 15 था, तो 122 अपॉन ये 15 डिवीजन में आ गया। ये 3.01 मतलब सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड 3.03 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर आप 15 इंटू 3.01 इंटू 3.03 प्रॉपरली करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर एज 136.80। ये ऊपर का 122 एज इट इज लिख लिया एंड इनका मल्टीप्लिकेशन 136.80। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द डिवीजन ऑफ 122 बाय 136.80। यू कैन आइदर मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100 एंड ट्राई टू सॉल्व इट and you will get your answers if you solve correctly as 0.8918 and this is your final answer for coefficient correlation coefficient। is it clear to everyone now? just जो फॉर्मूला दिए वो एक बार आपने प्रॉपरली कर लिए तो it is quite easy for you। ठीक है, we'll see the next question now। in the next question what have they given? अगर आप क्वेश्चन ठीक से देखोगे उन्होंने बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.3 दैट मींस r की वैल्यू आपको 0.3 दी है। देन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दिया आपको विच इज 12 क्वेश्चन में दिया है। देन ने बोला है वेरियंस इन x इज गिवन एज 9 दैट मींस वेयर x इज गिवन एज 9 एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन y मतलब सिग्मा y ये आपको फाइंड करना है। अब आपको r कोवेरियंस x सिग्मा y सिग्मा x इसका कौन सा फॉर्मूला याद है? ये देखो ये वाला, ये फॉर्मूला क्या है r इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। उसमें सिग्मा वाई फाइंड करना है तो मुझे सिग्मा एक्स कोवेरियंस एंड r तीनों पता होने चाहिए। r मतलब कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता है, कोवेरियंस एक्स वाई दिया है, सिग्मा वाई निकालना है सिर्फ सिग्मा एक्स बाकी, सिग्मा एक्स पता नहीं है बट वेरियंस एक्स मुझे पता है। मैंने आपको पहले ही बोला सिग्मा एक्स मतलब क्या स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ वेरियंस एक्स और वेरियंस एक्स का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया गया है जो 9 है तो अंडर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू 3। तो मुझे सिग्मा एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 3। अब करो पुट r इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, r को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, सिग्मा वाई यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे लिख लिया, ये r यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड देखो ये डिवाइड हो गया। अब जो वैल्यूज है वो पुट करो उसमें डायरेक्टली कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जिसकी वैल्यू 12 है, सिग्मा एक्स जिसकी वैल्यू 3 है, r दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू 0.3 है। 3 इंटू 0.3 इज 0.9, 12 अपॉन 0.9 का आंसर आता है 13.333333 रिकरिंग है तो सिग्मा वाई का आंसर कितना आ गया 13.33 आ गया बराबर है। दैट मीन्स वही आपको पूछा गया था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वी हैव गॉट एज 13.33। इज इट क्लियर टू यू? इस एक्सरसाइज में एक और टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल दिया जाता है जिसके ऊपर से एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो और वो सारी झंझट करो, बट उस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली इस चैप्टर में से पूछे नहीं जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव सिंपली सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपने किए फिर भी एग्जाम में आप इजीली सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अटेम्प्ट कर सकते हो। सो जस्ट गो थ्रू दिस 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर देयर इन द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 क्वेश्चंस भी अगर आपने ठीक से कर लिए then also you will be able to opt for the paper quite easily। ठीक है, please go through it properly। I'll share the PDF of this with you also and all the very best for your test on Monday। ठीक से पढ़ाई करो, चैप्टर 5, 6 मैथ्स 1 का उसका भी ठीक से पढ़ाई करो और ये चैप्टर 5 जो है इसमें एक ही एक्सरसाइज है ये ठीक से करके आओ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।